Hello dear students, welcome to online classes from Sigma School of Excellence. My name is Sheikh Aviz, I am your physics tutor. So students, as you know we have learned a phenomena of light called as the reflection of light. Okay, और उसके सारे laws हमने पढ़े आगे और हमने understood करा what are mirrors. Okay, and we have learned how the reflection happens in what mirror. Then we learn about the next phenomena of light called as the reflection of light. So आज हम क्या करने वाले, we will again recap all the concepts of refraction through this online classes. Okay, so let's start the session. So you can see what is this, it's a source of light, this torch. तो अब light is release होती है, this is light. So light, as I taught you in the in the very first session about light, light is what, light is an energy that produces the sensation of vision. एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें विजन का एहसास दिलाती है, और उसके बारे में हमने बताया था टेक्निकली आपको लाइट के बारे में कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है which has acts like a dual C. It has dual nature. Light act as a particle also, and light act as a wave also. Yes or no, dear students? But this is the local definition. This is general definition of light, that it is an energy that produces the sensation of vision. Okay. Then we have learned about the basic and the basic property of the light is light propagates rectilinearly. Okay, that is what light follow the straight path. Okay, तो देखो यहाँ पर एक विंडो से लाइट आ रही है, तो लाइट क्या करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है. ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ओके, so light is traveling in a straight line. This is the rectilinear propagation of light. Okay, then we have learned about the phenomena of light called reflection of light. That is what, when a light ray falls on an opaque surface. Okay, this light ray is called as the incident ray. So after getting reflected at point Q, it get reflected, okay, along the green path. It is the reflected ray, and the point of at the point of incidence we just draw an imaginary line perpendicular to the opaque surface called as the normal. And here two angles are formed, angle of incidence and angle of reflection, and both the angles are equal. This is the law of reflection we have learned. Okay, I'm just recalling the thing which I have taught to you in the previous session. Okay dear students, अब आगे बढ़ते हैं. So now we are going to learn about the next phenomena of light called as the refraction of light. Okay, so what is the refraction of light, what is the meaning of refraction? It is simple, as simple as possible. Okay, change in direction of propagation of ray of light when it travels obliquely from one medium to another ट्रांसपेरेंट मीडियम. जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में प्रोपेगेट होकर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांजिट होगी, और दूसरा मीडियम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. And I also taught you that apart from the change in direction, speed also changes and the wavelength also changes. Okay, but the one property doesn't change, where is the frequency. Okay, this is the complete definition of refraction of light. Okay, so you can see there is a, we have a rectangular glass slab, and above the glass slab there is air. So and inside the glass slab it is a glass, it is made of glass. सो लाइट रे जब आएगी, मैंने आपको ये बताया था कि एयर रेयर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम. ओके, रेयर मीडियम क्या होता है, जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होती है. इनफैक्ट एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम. ओके, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम. ओके, it is optimum and maximum. Okay, and so when a light ray travels in a rarer medium, it is the incident ray. आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल बनाया हमने, इसको जाना क्या था, इट फॉलो द येलो पाथ अलोंग क्यूसी, बट क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज मैंने आपको एक ट्रिक दी थी आरडीटीएम, rarer to denser is towards normal, so it bend towards the normal. Okay, so this light ray bend towards the normal. Okay, so now when this QR falls on another interface DC, in this at this interface light travels from denser to rarer. Okay, so when light ray travels from denser to rarer, it bends away from the normal. जब ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा, उसे जाना तो इस बात के अलोंग था जो आपको यहाँ शो हो रहा है ना, मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट भी कर देता हूँ. ओके, इसके अलोंग जाना था इसको ना, तो बट वो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, यस लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, सो this path के लोग जब जाएगी तो it bends away from the normal. Okay, so the trick is what, when the light ray travels from denser to rarer, it bends away from the normal. Okay, so now इस rectangular glass slab में दो जगह refraction हुआ है, एक तो Q point पर हुआ है, एक R point पे हुआ है. Okay, so in this phenomena, in this
in this picture two refraction happens. Okay, now the final ray that emerge out from the from the glass slab is called as the emergent ray. उसे क्या बोलते हैं हम? emergent ray बोलते हैं. Okay, तो ये आपको टर्म याद करनी है. Okay, now students, this angle, this yellow angle called as the angle of incidence. Then we have inside the glass slab angle of refraction. Now this emergent ray when emerges out of the glass slab, it makes an angle called as the angle of emergence. Okay, now let us learn कि refraction हो क्यों रहा है. Okay, एक थोड़ा इसको हम एक इसका इसको समझने के लिए रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, लेट अस अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ओके, सपोज इमेजिन ए ट्रैक्टर, इमेजिन ए कार और एनी व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन रोड. ओके, तो ये हाईवे है और यहाँ पर क्या है, रफ रोड है ना, यहाँ पर आसपास क्या है, रफ रोड है. अब जब क्या होगा, ट्रैक्टर इस तरफ आएगा. अब बताओ जब वो यहाँ पर आया है तो अब क्या होगा, जैसे ही वो राइट तरफ मूव करेगा तो बताओ यहाँ तो क्या है, सरफेस क्या है, स्मूथ है. ओके, और यहाँ जो सरफेस क्या है, रफ है. सो ट्रैक्टर कहां से आ रहा है, रफ स्मूथ से रफ सरफेस पर आ रहा है. ओके, और रफ स्पेस पर ऑब्वियसली स्पीड कम होनी है और स्मूथ स्पेस पे स्पीड ज्यादा होती है. तो मैं आपको इमेजिन करके बता रहा हूँ कि ये ऐसी लाइट तो नहीं है, बट हम एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेकर, वो ट्रैवल कर रहा है स्मूथ टू रफ सरफेस में. तो क्या होगा, जब वो ट्रैक्टर या कोई भी ऑटोमोबाइल स्मूथ से रफ सरफेस पर आएगा, या ऐसा सरफेस जहां स्पीड ज्यादा है और ऐसा सरफेस जहां स्पीड कम है, तो वो कम स्पीड वाले रीजन में आएगा तो क्या होगा, इट शुड व्हाट, अपना डायरेक्शन वो चेंज कर लेगा. ओके, तो देखो जैसे रफ सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा. ओके, ये आप नोटिस करेंगे, इमेजिन करेंगे तो आपको सही में आ जाएगा, है ना. ट्रैक्टर को जाना तो ऐसे था अलोंग द वाइट पाथ, बट एज सून एज इट चेंजेस द मीडियम फ्रॉम स्मूथ टू रफ, ओके, इट बेंड्स, वो बेंड हो जाएगा. ओके, so conclusion is what, tractor bends towards the normal as its velocity decreases. ठीक है, जहां पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्या होगा, बेंड हो जाएगा. ओके, सो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. ओके, तो लाइट क्या होती है, टुवर्ड बेंड, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है, और जहां पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. दिस इज द रीजन वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन इमेजिन अबाउट द हाउ रिफ्रैक्शन हैपेंस. नाउ इमेजिन दिस ट्रैक्टर comes obliquely, perpendicularly fall होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा. ओके, यस और नो, लाइक दिस. सो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, और डेंसर से रेयर में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, यस स्टूडेंट्स. सो नाउ जब लाइट ट्रैवल स्ट्रेट, जब बिल्कुल ही वो स्ट्रेट फॉल होगी तो क्या होगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. ओके, सो नाउ वी हैव लर्न अबाउट व्हाट, when light ray travels from rarer to denser medium, what it bend towards the normal. देखो आप यहाँ पर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. ओके, यस और नो स्टूडेंट्स. एंड व्हेन उसके अलावा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, एंड व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, तो उसको जाना तो येलो पाथ के अलोंग था, बट वो कहाँ चली जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे चली जाएगी. यस और नो स्टूडेंट्स, और जहां पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. आई होप यू गेट माय पॉइंट स्टूडेंट्स. ओके, ये हमने पढ़ भी लिया था, आई एम जस्ट रिकॉलिंग द थिंग्स टू यू. ओके, नाउ अगर कोई लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है अलोंग द नॉर्मल, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, वो परपेंडिकुलरली फॉल हो जाएगी. इट पासेस अनडेविएटेड. ओके, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसमें ओनली डिक्रीज होगी. ओके, बट डेविएशन नहीं होगा. Now students, let us solve some question. It's a quiz time for yours. Okay, although it's an online class, it's not one-to-one classes, so you have to just think about the answer. Okay, मैं question रखूँगा आपके सामने और you have to think and I will have to get the answer over here. So the very first question, you can see if a ray of light strikes the glass slab at 30-degree angle, what is the angle of incidence? ठीक है, अगर वो strikes हो रही glass slab से 30 डिग्री पर, तो angle of incidence क्या होगा? Yes, what's the answer? I think you have thought about 30 degree, but it's wrong. Okay, 60 degree. कैसे? Let me explain you over here. देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ. This is the glass slab. Okay. Now light ray आ रही है तो वो जो है glass slab से 30 डिग्री एंगल बना रही है. It is given to us. So if it is normal students, अगर ये normal है तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? It is the angle of incidence, and this angle comes out to be what?
it become 90 minus 30. Okay, तो आंसर कितना आएगा? It become what? 60 degree. This is the angle of incidence. Clear? तो ये आपको थोड़ा सोचना था. Now next question is, what if a ray of light strikes a glass slab normally? What is the angle of incidence? बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉलो हो रही है, नॉर्मली फॉलो हो रही है, तो आई कितना हो जाएगा? दिस इज ग्लास स्लैब. ओके, नॉर्मली आ रही है तो क्या होगा? उसमें कोई डिविएशन नहीं आएगा, वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी. तो जहां पर नॉर्मल है वहीं पर ही इंसिडेंट रहे, तो यहाँ पर आई कितना हो जाएगा? आई बिकम्स व्हाट? 0. Okay, that's our answer. Okay, now if a ray of light strikes a glass slab at 30 degree, what is the angle of emergence? Now ये चीज आपको बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि सपोज यहाँ पर एक ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट लाइट आ रही है ऐसे करके, ये हमारा नॉर्मल है. ओके, फिर वो अपना पाथ चेंज कर रही है, फिर यहाँ पर अगेन रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर अगेन वो अपना पाथ चेंज करके चली जाएगी. ये हमारा एंगल, यू कैन सी ओवर हियर, दिस एंगल इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ एमरजेंस. सो ऑलवेज याद रखना कि आई जो होता है ई के इक्वल होता है. ओके, ये हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट यू विल लर्न अबाउट इट इन द अपकमिंग ग्रेड्स व्हेन यू कम इन 12th ग्रेड. ओके, जब 12th क्लास में ऑप्टिक्स वापस से बढ़ोगे ना, तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आई के इक्वल की होता है. बट एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न, यू मस्ट लर्न, यू मस्ट मेमोराइज दैट आई इज ऑलवेज इक्वल टू ई. when light ray travels in a glass slab, two reflection happens, so I is always equal to E. Okay, I hope it is clear to you. Now मेरी बात सुने कि अब जैसे कि हमसे बोल रहा है कि वो ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक हुई 30 डिग्री एंगल पर, so what I can say that I can say that this angle is 30 degree. Now if this angle is 30 degree, then I becomes what? 90 minus 30, that is what? 60 degree. तो अब I हमारा 60 डिग्री हुआ है, तो EB कितना हो जाएगा? is always 60 degree because I के इक्वल होता है. Okay, so this is the question. Okay, now one more question. A ray of light strikes the glass slab at an angle of 50 degree with the normal to the surface of the glass slab. What is the angle of incidence? अब वो क्या नॉर्मल से एंगल बना रही, तो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? 50 डिग्री. इस टाइम क्या है, हमें जो एंगल दे रखा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्लास स्लैब से ना देकर नॉर्मल से दे रखा है. So this angle is what? 50 degree. I hope it is clear to you. So I is 50 degree over here. These are the basic questions. Okay, now moving ahead to the next question. Area of light get deviated when it passes obliquely from one medium to another medium because क्यों? अपना पार्ट डिविएट क्यों करती है वो? Because color of light changes, speed of light changes, intensity of light changes, frequency of light changes. देखो ये तो कभी हो नहीं सकता, frequency चेंज नहीं होती. ओके, कलर भी चेंज नहीं होता है. ओके, इंटेंसिटी की बात हम बाद में कर सकते हैं, बट स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती नहीं होती जब लाइट रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम जाती है. सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, यस. So now moving ahead, one more question is there, very nice question. Rakesh performs the experiment of tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. He observed that in all the cases, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है. ओके, for all the cases I is all equal to I is more than R but I is equal to E. Okay, I is more than R but I is equal to E. I is less than more than R, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको समझाने के लिए मैं लेट मी जस्ट 1 सेकेंड, और मैं एक ब्लैंक साइड लेता हूँ, आपको समझाता हूँ. गिव मी सम सेकेंड्स. Okay, so dear students, 1 second, yeah, let me just take the blank slide in front of you. देखिए, suppose this is the rectangular glass slab, students. Okay, and this is the incident ray falling on the rectangular glass slab, and this is what the normal is. Okay, and it bent towards the normal over here like this. Again we just do the normal like this and it bends away from the normal. Okay,
तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तीन एंगल की बात करते हैं. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंड दिस एंगल ऑफ इमरजेंस ई. देखो यहाँ पर फर्स्ट बात तो हमने आपसे कही दी है, आपको मेमोराइज करा दिया है कि ऑलवेज व्हेन ए लाइट रे falls on the rectangular slab, I is always equal to E, always. Okay, but now talk about this I and R. You can see लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था ना, मैं इसको अलग तरह से शो करता हूँ. लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम वेयर लाइक दिस, रेड के अलोंग जाना था, बट वो इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. So obvious बात क्या होगा, R की वैल्यू कम हो जाएगी ना I के मुकाबले. So what I can say, when you see this diagram, I can say I is what, less than E. So this is the two condition which always happen when a light ray happens to refraction. जब light ray में refraction होता है through a glass slab. Okay, this is the condition. So now you can move forward, and which is the right option? You can see option D is the right option. Okay, I is always less than E. I is more than E, and I is equal to E and I is more than E. So ये मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया. फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज हमेशा I क्या होगा, R से ज्यादा होगा, एंड I is equal to E. The first option is the right option. Okay, so I hope it is clear to everyone over here, students. Okay, now let's move forward to next thing. Okay, so as I said to you, what is the refraction of light? Okay, and you can see the diagram now. This refraction happen as per the laws. Okay, you know that all the laws are created by omnipotent God. Okay, हम इंसानों ने क्या करा है, महज उन laws को discover करा है. Okay, so all the phenomena, okay, that happen as per some laws, these laws has been, you know, generated and made by the omnipotent God. Okay, हमने उन laws को discover करा है. So what are the laws as per refraction happens? There are two laws. Okay, the first law is very simple. You can see diagram, incident ray is there, refracted ray is there, normal is there, and two mediums are there. So the first law is very simple. It is same as the first law of reflection. The incident ray, the refracted ray, देखो यहाँ पर मैं मार्क भी करते जा रहा हूँ, PQ incident ray है, QR refracted ray, and the normal. Okay, all lie at the point of incidence and all lie in the same plane. वो क्या करते हैं, सेम प्लेन अप्लाई करते हैं. ओके, but the second law is very important, very important. It's a very unique law. It's totally different from the second law of reflection. That is what, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for the light of a given color and for the given pair of medium. Okay, एक particular frequency of light होनी चाहिए. Okay, frequency of light and टू पेयर ऑफ मीडियम, दो मीडियम जिसको हम चेंज नहीं करेंगे. ओके, देखो यहाँ पर एयर ग्लास तो एयर ग्लास रखेंगे ना, तो जब हम एयर ग्लास रखेंगे यहाँ पर, तो हमेशा क्या होगा, द रेशियो साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, तो यहाँ पर साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इट ऑलवेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर? अब इस लोग को जरा हम और डायग्नोस करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि ये लो असल में है क्या. ओके, सो नाउ लिसन टू इट केयरफुली. मैं इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ और इस लोग को और अच्छे से समझाता हूँ. ओके, सपोज स्टूडेंट, दिस इज द सॉरी, one second. Okay, I'm unable to do a straight line. Just wait for a while. Okay, this is straight line. Okay, so now this is an interface. Basically ये interface है, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक मीडियम है, मीडियम 1, और दूसरा मीडियम, मीडियम नंबर 2. ओके, दो अलग अलग मीडियम से, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है.
अब हुआ ये कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, ओके, एंड यू आर ए सपोज यू आर ए फिजिसिस्ट, यू आर ए साइंटिस्ट, एंड यू वांट टू discover the laws of refraction, okay. So you did an experiment because most of the laws has been discovered by human beings through experiment, okay. जितने भी लॉज डिस्कवर हुए ना फिजिक्स में वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिस्कवर हुए, ओके. सो इमेजिन आप एक साइंटिस्ट हैं, आप फिजिसिस्ट हैं और आपने एक लॉज ऑफ रिलेशन डिस्कवर करना है एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ओके. So you cannot discover any laws of physics without the help of mathematics, okay. So in this law, in the second law, in the discovery of second law, maths play a very important role, okay. So in the second law trigonometry happens to come, okay. ट्रिग्नोमेट्री आएगी इस लो को समझने के लिए, तो मैं आपको समझाता हूँ ना. सपोज ऊपर मान लेते हैं, ऊपर मीडियम हमारे पास सपोज वाटर, ओके, और नीचे वाला मीडियम जो है वो ग्लास, ओके. एंड सपोज आपके पास एक लेजर बीम है स्टूडेंट, ओके, आपके पास एक लेजर बीम है जिसको आप क्या कर रहे हो, जिससे आप रिफ्लेक्शन कराना चाह रहे हो, ओके. सपोज इज अ लेजर बीम. अब आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक लाइट रे ली, ये लेजर में लाइट रे आ रही है ना. नाउ आई जस्ट डू द नॉर्मल विद अदर कलर लाइक दिस. वन सेकेंड. Okay, so now अब यहाँ पर suppose you measured this angle, suppose let this angle be I1, okay. ये angle of incidence जो आपने measure करा वो कितना है, it is I1, okay. अब यहाँ refraction हुआ और light ray या तो bends towards होगी, bends away होगी. मैंने मान लिया for example for the sake of understanding मैंने suppose करा कि light it bends away from the normal, ऐसे चलेगी, ओके. दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके. सो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया, ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. फिर क्या करा आपने, थोड़ा लाइट को और ऑब्लिकली पास करा, यानी आपने आई को बढ़ा दिया है ना, आई को थोड़ा आपने ऐसे करके और बढ़ा दिया. लेकिन मैं यहाँ नॉर्मल बना लेता हूँ, तो ये हमारा एंगल ऑफ आई बढ़ चुका है ना. पहले तो ऑब्लिक लेस ऑब्लिक था, अब ज्यादा ऑब्लिक हो गया, ओके. सो अब एंगल ऑफ आपका I2 हो गया, ओके. तो आप बहुत सारे एंगल्स पर रिफ्लेक्शन करा रहे हो. लाइट अगेन क्या होगी, बेंड अवे हो जाएगी, तो लाइट ऐसे चलेगी सपोज, ओके. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2, ओके. अगेन आपने और ऑब्लिकली पास कर लाइट को ऐसे पास कर दिए, बहुत ज्यादा एंगल ऑफ आई को बढ़ा लिया. अगेन आई जस्ट नॉर्मल एंड this is the I3, okay. Now it bends away from the normal like this. This is what angle of refraction R3. So after collecting this data, आपने I1 measure करा, I2 measure करा, I3 R3 measure करा ना. आपने मीडियम को सेम रखा, वाटर ग्लास सेम रहा, पर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज करा, उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हुआ, ओके. So now you have the information, you did the experiment, you have the data. Now with this data you have to डिस्कवर ए लो, ओके. वो लो ये डिस्कवर हुआ कि जो भी साइंटिस्ट था, बेसिकली जिस फिजिसिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने इस लो को डिस्कवर करा है, उनका नाम है स्नेल, ओके. वो जो स्नेल होती है, वाली स्नेल नहीं है जो आप देखते हो ना, वो रेंगती चलती वाला स्नेल नहीं है. इट्स द नेम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. उनका नाम स्नेल था, उसने इस लो को डिस्कवर करा. दिस लो इज आल्सो कॉल्ड एज द स्नेल्स लो, ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है बात, ओके. सो नाउ What did Snell found? उसने ये पता करा कि अगर मैं, ऑब्वियस सी बात है, ये रिफ्लेक्शन तो है नहीं कि आई आर के इक्वल होगा. आई रिफ्लेक्शन के अंदर आई आर के इक्वल कभी नहीं होता, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के खिलाफ हो जाएगा ना. आई आर हमेशा क्या होगा, ये तो छोटा होगा या बड़ा होगा, कभी इक्वल नहीं होगा, है ना. यस. सो व्हाट स्नेल हैज डिड इज दैट, उसने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली. उसने ये पता करा कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन में, हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इट्स ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इट्स ऑब्जर्वेशन नंबर 2 एंड ऑब्जर्वेशन नंबर 3. तीन ऑब्जर्वेशंस लिए उन्होंने, तीन एक बार एक्सपेरिमेंट करा. नाउ व्हाट स्नेल हैज फाउंड इज दैट, स्नेल ने क्या करा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में साइन I1 निकाला. ये निकाला
जो एंगल I1 है उसका साइन निकाल. नाउ यू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक साइन क्या होता है, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ओके, देन स्नेल हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन R1 आल्सो. ओके, सो स्नेल ने इन दोनों साइन का रेशियो निकाला और दोनों को आपस में डिवाइड करा. ओके, ये ऑब्जर्वेशन 1 से डेटा उसने पता लगाया. ओके, कैलकुलेट कर लिया इसकी. फिर ऑब्जर्वेशन 2 से भी क्या करा, स्नेल ने साइन I2 निकाला. Then he just find sin R2 also. Okay, ये अलग से इसको कैलकुलेट करके मैथमेटिकली इसका रेशियो निकाला. रेशियो इज क्या, इट्स अ डिवीजन बिटवीन टू क्वांटिटीज. ओके, नाउ इन द थर्ड ऑपरेशन अगेन स्नेल ने sin I3 निकाला and he just found sin R3 also. So he was got shocked when he found this ratio. This ratio comes out to be equal. This becomes the Snell's law. यही तो Snell's law है कि Snell's law ये बोलता है, या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमसे ये बोलता है, जब भी रिफ्रैक्शन होगा और अगर हम मीडियम, द पेयर ऑफ मीडियम, ये हमारे पास एक दो मीडियम का जोड़ा है ना, वाटर ग्लास का मीडियम का जोड़ा है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं और हम अलग अलग आई को, अलग अलग आई से लाइट रे को रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो चाहे आई बदलेगा. देखो I1 I2 I3 क्या है, आपस में इक्वल नहीं है. I1 I2 I3 तीनों क्या है, दे आर नॉट इक्वल. ओके, एंड R1 R2 R3 दे आर नॉट इक्वल. तो इतना सारी चीजें अनइक्वल है, बट इस पूरे फिनोमिना के अंदर ये चीज हमेशा इक्वल रहेगी कि हमेशा साइन आई और साइन आर का रेशियो स्टूडेंट्स इज ऑलवेज happens to be equal, and this is the, one second, this is what called as the second law of refraction. So let me just take a pen and yes, these ratios are always equal. Okay, so this is what called as Snell's law कि sin I और sin R का रेशो हमेशा, एंगल I बदलेगा R बदलेगा, बट ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, it always becomes the constant. And next shocking thing is what, this constant comes out to be what, this constant comes out to be the refractive index of these two mediums. ओके, ये मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया ऑलरेडी. तो ये जो कांस्टेंट आया है वो भी किसके इक्वल है, दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ टेल मी व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास G with respect to what, W for water. तो वो क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी स्पीड नीचे आएगी, तो Vg, the glass speed will be come over here and the water speed will be coming in the numerator part, and this NGW will be same as the ratio. Okay, this is another shocking thing. देखो यहाँ पर स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा ही लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. मैं वापस से एक न्यू स्लाइड लेके आपको इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट वेट. Yeah, so let me take another slide to make it understood by you, because इसी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पूरे चैप्टर का कोर टॉपिक यही है स्टूडेंट्स. ओके, तो मैं वापस से एक छोटा डायग्राम बना लेता हूँ, और यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लाइट रे आ रही है, ऐसे करके जा रही है, लाइट रे आ रही है, ऐसे करके जा रही है. तो अलग अलग एंगल्स पे पास हो रही है ना. ये हमारा I1 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा I2 है, ये हमारा, it is R2, it is I3, this is what, R3. So what is the Snell's law? This Snell's law is what, this sin I1 upon sin R1 is equal to sin I2 upon sin R2 is equal to sin I3 upon sin R3. ऐसे करके आप कितने भी एंगल्स ले लो, हमेशा ये रेशियो, खाली तीन एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे स्टूडेंट्स. ओके, आई एम talking about the whole phenomena when the medium, this is the glass, suppose it is the glass, it is the water, so
सपोज द ग्लास में स्पीड मैंने मानी vg है, वाटर स्पीड कितनी है, vw है। ओके, सो ग्लास वाटर मीडियम को अगर चेंज नहीं करेंगे और लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स व्हाट, इसको हम अगर बोले कि हमेशा साइन आई और साइन आर का रेशो हमेशा क्या होगा, इट ऑलवेज बी कांस्टेंट। And the next shocking and next interesting thing about this ratio is what? This constant value, the ratio sine and sine r is basically the refractive index of what? Water with respect to what? Glass. Okay, and you know the formula of refractive index, that is what? It's become velocity of light in glass upon velocity of light in water. This is what the says law. Okay students, so now ये हमारा second law है and that is the core topic of this chapter. I think everything I had taught to you up till now is clear to you. Okay, so what you have to do is that you have to make the appropriate notes of what I taught to you today, and with this we have come to the end of session students. Okay, so make the appropriate notes of it, and we will be moving ahead tomorrow and to learn some new concept in this chapter. Okay, so till then have a nice day, take care, bye bye, this is Sheikh Away signing off. Bye bye students.